Now children, today let's start with chapter number 4, getting to know plants. So in this chapter, I will tell you about the different plants. Classification karungi on the basis of size, right? Structure of plants, stem, leaf and flower. So this is the function of leaf. After completing the chapter, you will read it. So plants grow almost everywhere. They grow in soil, various water bodies, freshwater lake, river, ponds and ocean. Without plants, all life on the earth would not be able to exist. As most living beings, they depend directly or indirectly on them. It has been estimated that there is about 250,000 varieties of plants according to their size and shape. So classification based on size, plants can be classified into herbs, shrubs, trees, creepers and climbers. Herbs क्या होते हैं? They are the small plants with soft and green stem. ये may or may not be have branches. ये अपनी life cycle को पूरी complete करते हैं. Like we have mint, balsam, wheat, paddy. Then we have shrubs. So there are medium-sized plants with hard and woody stem. The stems are usually much branched like cotton, rose, night, jasmine, your croton and durette. These all are the different types of shrubs. Right? Then we have tree. Tall होते हैं, clear होते हैं, hard होते हैं, branches उनकी trunk होती है. Right? Like mango, teak, salk, neem, peepal and eucalyptus. Now creepers क्या होते हैं? जो ground पे creep करते हैं, बहुत ज़्यादा heavy होते हैं, तो वो creep करते हैं. Climbers जो दूसरे plant का support लेते हैं, ठीक है? जैसे आपका grapevine हो गया, bunny plant हो गया. These all are the examples of climbers. So if we talk about creepers जो usually creep करते हैं, like pumpkin, bottle gourd, bitter gourd में. If we talk about climbers, जो उनको neighbor की need, stick की need होती है, उन पे climb up करते हैं, like grapevine, money plant, pea plant. ये सब किसके example है? Climbers. Now next is let's study about the structure of plant. We have two parts, two system, root system and shoot system. Roots below the ground and shoot system above the ground. Here you will see flower, fruit, leaves, okay? Stem. These are the different parts that come under shoot system. So roots of plant they are connected differently in different plant species. इसको हम root system कहते हैं. Root system, a plant root system continuously supplies dissolved minerals and water. ठीक है? Stems or leaves को in different parts. It accomplishes this and the root must grow to a new region of the soil. The growth and metabolism of plant root system is supported by process of photosynthesis. Right? Then जो रूट का स्ट्रक्चर होता है वो आपको इस प्रोसेस के लिए हेल्प करता है. नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स. ये नॉन ग्रीन है, अंडरग्राउंड पार्ट है. दे डेवलप फ्रॉम रेडिकल, दे ग्रो अवे फ्रॉम सनलाइट. ये ग्रो करता है टुवर्ड्स सॉइल एंड वाटर. राइट? दे हैव नंबर ऑफ लेटरल ब्रांचेस. दे डू नॉट हैव नोड्स. इनके नोड्स नहीं होते और ना ही इंटरनोड्स होते हैं. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ रूट. फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन करते हैं. ठीक है? वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को, एंड सॉइल फ्रॉम मिनरल सॉल्यूशन. ठीक है? इनके जो रूट हेयर्स होते हैं उनसे. एंचर एंड सपोर्ट. भाई इसको सपोर्ट चाहिए होता है, फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. फोटोसिंथेसिस, जिससे हम खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को करता है. स्टोरेज, ये क्या करता है? एक तरीके का स्टोरेज ऑर्गन होता है जो वाटर और कार्बोहाइड्रेट्स को मॉडिफाई करता है. swollen roots of carrot, sweet potato. Roots prevent soil erosion. ये soil erosion को prevent करते हैं क्योंकि ये हवा से उड़ता नहीं है. Now activity is given to you. You can observe this activity. आप एक बार करके देखेंगे इसको घर पे, right? And then you will tell me the conclusion. Now parts of root system. We have different parts: primary root, secondary root, tertiary roots, root hair. So let's study about the primary root. ये main root होते हैं, यहाँ पे radicals develop होते हैं. Then next is secondary root, जो side branches होती है ना, तो उससे आपने देखा होगा roots hair निकलते हैं, वो होती है आपकी primary secondary root. Then we have tertiary root. Secondary roots के जो branches होती है वो आपकी tertiary root होती है. रूट हेयर्स क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो रूट है वो एपिडर्मिकल जो टिश्यूज होते हैं वो निकलते हैं रूट से. ये शॉर्ट एंड शॉर्ट लिव्ड होते हैं और ये क्या डेवलप करते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी रूट को डेवलप करते हैं. राइट? ये इनकी थिन सेल वॉल होती है, थिन लाइनिंग होती है साइटोप्लाज्म में, जो न्यूक्लियस कंटेन करता है. व्हाट इट कंटेन्स? इट कंटेन्स न्यूक्लियस. नाउ रूट कैप, द टिप ऑफ द रूट इज कवर्ड बाय अ कैप जो आपकी शेप्ड होती है थिम्बल की तरह. राइट? सो वी कैन से दैट these are
disintegrate and what they form? They form strong protective cover. ठीक है, जो रूट कैप होती है वो स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव कवर को क्या करती है? कवर करती है. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट. वी हैव टैप रूट, जिसकी ऐसे मेन ब्रांचेस होती है और उससे डिफरेंट निकली होती है. ठीक है. देन वी हैव फाइब्रस रूट. ठीक है, इसकी कोई मेन ब्रांच नहीं होती है, ऐसी होती है, बस यही से सारी आपकी निकल. इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज फाइब्रस रूट. राइट. So in taproot, what happens? There is a long and strong main root that continues from the stem, जिसको हम taproot और primary root कहते हैं. Right? To provide strong support for the plant, branches comes off to the main root. और जो branches होते हैं उनको हम secondary root भी कहते हैं और tertiary roots भी कहते हैं. Length है जो branches की और taproot की वो separate होती है by tertiary root and can extend up to several meter of length. और वो किस पे depend करती है? Height पे और plant के size पे. नेक्स्ट इज फाइब्रस रूट. मैंने आपको तो इसकी कोई भी प्राइमरी रूट नहीं होती. ठीक है, इनकी सेकेंडरी और टर्शियरी रूट होती है और ये फाइब्रस होती है. राइट. देन वी हैव एडवेंटियस रूट, जैसे आपने देखा होगा कॉटन की, पाम की. इसमें क्या होता है? आपको मोनोकॉट ट्रीज मिलेंगे, छोटे छोटे मोनोकॉट ट्रीज मिलेंगे, इनको हम एडवेंटियस रूट्स कहते हैं. नाउ वी हैव मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स. रूट्स हैव सम स्पेशल फंक्शन जो क्या कुछ परफॉर्म करते हैं. इन सच केसेस देयर आर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर डिफर फ्रॉम द नॉर्मल रूट्स. सो फर्स्ट इज सपोर्टिंग रूट्स. सपोर्टिंग रूट्स होती है दो तरीके की होती है. एक तो होती है आपकी प्रॉप रूट और एक होती है स्टिल्ट रूट. तो प्रॉप रूट क्या होती है? इट इज दोज ऑफ बैनविन ट्री. आपने देखा होगा एडवेंसिव रूट दैट अराइज, जो हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस से ग्रो वर्टिकल, मतलब नीचे की तरफ, जो नीचे की तरफ ग्रो करती है, उसको हम प्रॉप रूट कहते हैं. जैसे आपने कॉलमर रूट देखा होगा. ठीक है. स्टिल्ट रूट, दोज ऑफ पैंडवास, एडवेंचर्स रूट जो लोअर पार्ट, ठीक है, लोअर पार्ट से जो निकलती है. देन वी हैव शूट सिस्टम, जो अबव द ग्राउंड होता है. इसमें मैंने आपको बताया था स्टेम्प होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ब्रांचेस होती है. देन द फंक्शन ऑफ शूट सिस्टम इंक्लूड फोटोसिंथेसिस, रिप्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड हार्मोन प्रोडक्शन. नेक्स्ट इज स्टेम, the part of plant that carries water and mineral from roots. ये water और minerals को carry करता है root से to different other parts of the plant. Right? ये provide करता है mechanical support और ये help करता है to move water and nutrient to further reaches of the plant. और step they are filled with small transport pipes in the form of xylem and phyte. Right? So function क्या है stem का? ये support देता है. ठीक है? They support branches, leaves, flowers, fruits and buds. Transportation, they conduct water, nutrients and the products of photosynthesis so that to and from the roots. They transport system ये necessary होते हैं for the vertical and lateral movement of water. Next is food manufacturing. तो young green stems होते हैं, वो क्या perform करते हैं? They perform minor role in the production of food. बहुत कम role इनका होता है. Then food storage, like in the case of potatoes, garlic, ginger, इनको हम store house में, जैसे हम कोल्ड स्टोरेज कहते हैं, उसमें क्या करते हैं? स्टोर करते हैं. नाउ है द एक्टिविटी इज गिवन टू यू ऑन टू स्टडी द कंडक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट थ्रू स्टेप. सो आप देखो इसमें एक स्मॉल साइज का कार्नेशियन प्लांट लिया है और यहाँ पे आपको मेथड्स दिए हैं. विल सी व्हाट यू विल ऑब्जर्व. लीफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. दे आर फूड फैक्ट्रीज. ठीक है. द लीफ इज फ्लैटेड, ये थोड़ी फ्लैट होती है, थिन होती है, ग्रीन होती है, लेटरल स्ट्रक्चर की होती है. राइट. Now let's study about the different. Now I'm explaining you different parts of leaf and then you will fill when I have told you in the starting of the chapter. Right, like this. This is your petiole and this is midrib. जो main है midrib है. This is your blade. This is blade. And what are these? These are veins. इन्हें हम क्या कहते हैं? Veins. So parts of leaf. A leaf is borne on the stem at node. It usually has a stalk called petiole and pair of very small leaves जो आपके बेस में होती है petiole के. इसे हम stupils कहते हैं. They protect young leaves and the flat green portion of leaf is called lamina or leaf plate. और जो midrib होती है branches जो देखा ना अपने side से निकलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? Veins. Now types of leaves, we have two types of leaves, simple and compound. If we talk about simple leaf, यहाँ पे single और undivided lamina होता है. ठीक है. ये जो सिंपल लीव होती है इनका एक सिंपल सिंगल ब्लेड होता है और बड होता है. राइट. नेक्स्ट जैसा आपका बैनियन हो गया, पीपल ट्री हो गया, इसमें आपको सिंपल लीव देखने को मिलती है.
If we talk about compound leaves, so in compound leaves you will see one or more compound leaves. These are the leaves which has more than single blade. एक से ज्यादा single blade होता है और ये divide होती है number of leaflets में और each leaflet does not bear auxiliary buds. ठीक है? So we can say that next is venation. What is venation? So the arrangement of veins in leaf is called leaf venation. ये supply करता है water and mineral को and from roots and transport material from leaf to rest of plant. Vein arrangement can be used for plant identification when the pattern is distant and obvious, right? There are two types of vein, parallel or reticulate, right? Parallel venation क्या होता है? ये smaller in size होती है और ये parallel होती है from each other. Series of smaller veins connect large veins. Parallel venations occur in leaves. Nearly all monocotyledons, angiosperm whose embryo have one cotyledon in flowering plant, such as lily. Reticulate venation when the veins of a leaf shows numerous irregular interconnection. और ये appearance करते हैं नेटवर्क. आपका लगेगा एक नेटवर्क की तरह, देखो, like a network. इसको हम क्या कहते हैं? रेक्टिकुलेट. नाउ फंक्शन ऑफ लीफ, फूड मैन्युफैक्चर करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है, ट्रांसपिरेशन करती है, मीन्स वाटर को एब्जॉर्ब करती है, गैसेस एक्सचेंज होता है जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन. ठीक है? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इन टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट. ठीक है? ऑक्सीजन तो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. स्टोरेज ऑफ फूड, खाने को स्टोर करके रखती है. नेक्स्ट इज फ्लावर. द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ प्लांट इज योर फ्लावर. ठीक है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. इट रेंज वेरीज फ्रॉम कलर एंड कॉन्शियस. जैसे रोज हो गया, ऑर्चिड हो गया, ये आर द डिफरेंट फ्लावर्स. सो लेट्स स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. आप देख रहे हैं ये पेटल्स हो गया. दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज पॉलन. ये जो अंदर वाली पॉलन ट्यूब है, दिस इज ओवरी, एंड ये जो अंदर है इसको हम ओव्यूल कहते हैं. दिस इज रेसिपिटल, दिस इज स्टेम. ये आपका एंथर हो गया, फिलामेंट हो गया, दोनों एक साथ मिलकर क्या बन जाता है? स्टेमन. और स्टेमन क्या है? वो प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मेल. आपका स्टिग्मा और ये स्टाइल, पोलन, ये क्या रहती है? कार्पेल. ये आपका रिप्रोडक्टिव फीमेल पार्ट. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द कार्पेल, दैट इज रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर कंटेन्स ओवरी. इसमें आपका ओव्यूल, स्टाइल, स्टिग्मा होता है. ओवरी आपका बेस ऑफ द फ्लावर में होता है. फ्रॉम द ओवरी एक्सटेंडेड टेबुलर स्ट्रक्चर, इसको हम स्टाइल कहते हैं. टॉप ऑफ द सरफेस यहाँ पे एक रिसेप्टिव होता है पॉलन का, जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं, राइट? स्टिग्मा कैरी डिफरेंट फॉर्म्स. मोस्ट हैव डिजाइन टू हैव ट्रैप पॉलन. यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशन होते हैं स्ट्रक्चरल थीम में. देन वी हैव मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे हम स्टेमन कहते हैं. इसमें आपका एंथर होता है और फिलामेंट और स्टॉक होता है, राइट? एंथर जो होता है वो ऑरेंज येलो स्ट्रक्चर होता है. पॉलन फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर वो ट्रांसफर्ड होता है स्टिग्मा टू अनदर, यूजुअली इधर बाय विल्ड और बाय एनिमल. नाउ पेटल, कोरोला, स्टेपल एंड कैलेक्स, ये भी सब कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है आपके प्लांट के. यहाँ पे आपको स्टडी दिया हुआ है टू स्टडी द पार्ट्स ऑफ फ्लावर. नाउ फंक्शंस ऑफ फ्लावर. फ्लावर के फंक्शंस क्या है? एक तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये फूड डेवलप करता है फ्लावर से. ठीक है? नेक्टर फ्रॉम फ्लावर इज यूज्ड बाय हनी बीज टू प्रिपेयर हनी. Then they are used for aesthetic purposes like sources of perfume, flavoring food, and certain medicines. What is pollination? Transfer of pollen grains from anther to stigma. Many flowers are brightly colored and have sweet smell to attract agents, जैसे birds, insects, animal. जब insects sits on the flower, pollen grain क्या करते हैं? Stick to the body, and when they are rubbed off, they reach to another flower. Now we have completed this chapter. Hope you understood each and everything. Let's meet in the next class. That's all for today. Thank you.